Selling life insurance is considered to be one of the toughest sales in the world. India में natural childbirth has gone down by 80% in many places. This has become the culture, sadly. तो मेरे को कहता जानते हो who has a handicap? कहता जो पढ़े लिखे होते हैं ना, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, they have handicaps. हम सब एक फैसला लेने तक आजाद हैं, लेकिन जब हम फैसला ले चुकते हैं, हमारी आजादी खत्म हो जाती है, फैसला हम पे काबू पा लेता है. Our Indian culture has taught our women folks one thing, to stand by their spouses. तो मैंने कहा साहब अपनी जितनी पढ़ाई कर रहे हो ना, जो चरित्र निर्माण है वो नहीं हो रहा है, तो आप खाली रावण पैदा कर रहे हो स्कूलों में और कुछ नहीं कर रहे. इतनी एमिनेंट पर्सनालिटी के साथ कॉन्वर्सेशन एक बार में रैप की ही नहीं जा सकती है. That's why we are going to do the podcast in 2 parts and make sure that आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं so that you do not miss the second video as well. Let's dive into the first one. Hi everyone, welcome back to another episode of edX Talks. This video is going to be very empowering. In short अगर मैं बोलूँ तो ये वीडियो आपकी गाइड है on how you can win. अगर आपको हिंट नहीं मिला है, let me introduce to the guest today. We have with us Mr. Shiv Kheda ji. He's an international best-selling author. He's an educator, a business consultant. सर के पास बहुत years का experience है, बहुत ज़्यादा expertise है. And the best part is कि सर सिर्फ खुद leadership के pinnacle तक नहीं पहुँचे हैं. He helps the world reach there. He helps the leader in you to come out and shine. Welcome on the show, sir. Thank you so much आपने time निकाला. Thank you. I'm grateful to you. Thanks for coming. Thank you. So this video we are going to talk a bit about Sir's journey and of course के Sir ने जो books लिखी हैं उनके अंदर ऐसी कौन सी insights हैं, ऐसे कौन से highlights हैं और कौन सा pathway है जिससे कि आप अपने अंदर के leader को निकाल सकते हैं and a little bit of industry highlights as well. So can we get started, sir? Sure. Go ahead, Barisha. Sir, अभी तक you've had a lot of talks, you've had a lot of interviews. I've seen, many of them. And आपकी जो journey है overall, it even comes into the rags to riches stories and your struggles and your challenges. Kind of लोगों को कहीं ना कहीं पता है, but मेरे को उसके पीछे का perspective जानना है. So I know that when you were in your early 20s, the coal mines that you got, they were nationalized, and you faced a lot of financial struggle during that time. But still, you reached this pinnacle from that part. I want to know कि at that stage, because 20s is a very confusing time, it's very young. What was your experience and your perspective, like a young Shiv Kheda's POV, कि वो struggles आपने अपनी life को hinder नहीं करने दी. In fact, you chose to build on them because that is going to inspire the youngsters today. I got married when I was 22 and a half or somewhere around there. Okay. In fact, many times people ask me, wasn't that a little too early to get married? Right. Now I tell them if I had a rewind button in my life, I'd probably get married 2 years earlier to the same lady. Oh, wow. Now why do I say that? Because after I got married, since the mines got nationalized, we were literally on the street. And thereafter, I tried my hands on 3 businesses with no money and I failed in all 3. I left India. And we went to Toronto initially, started life with a bucket in my hand, washing cars. But why I brought my wife's mention here is because she took up a job. Okay. And she was supporting at that time. And she was the anchor in a way that while she was working, I obviously wouldn't get a job anywhere, I'm not qualified. But gradually, that gave me the time and the spirit to go out and venture out myself. So she was holding the fort. Right. And because of that, I was able to go out and do gradually what I could do. And I'll share with you one more thing. हाँ जी. सिर्फ मेरी बात नहीं है. You will find most NRIs are successful people. Most NRIs. Okay. And most of them also have started from a scratch. And of course, I'm not counting the professionals who started from a good point in any way, like a doctor, lawyer, and so on. They started well. But people like me, there were also some people like that. But you'll find why most NRIs have done well is because somehow our Indian culture has taught our women folks one thing: to stand by their spouses, to stand by.
Right. And that standby is a big strength. At least you know your home front is safe. True. You are protected here. बिल्कुल. And that's why it gives you that courage to go out and take more risks and move forward. ये एक बहुत बड़ी वजह है, इस वजह से लोग इंडियंस बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, बाहर जाके सक्सेसफुल हुए, क्योंकि उनका रिस्क टेकिंग की एबिलिटी बढ़ जाती है. Right. So that was a big factor. But yeah, starting from a scratch, washing cars, then दिन के टाइम में गाड़ियाँ साफ करता था, शाम को मैं घर घर जाके वैक्यूम क्लीनर बेचा करता था to supplement my income. And totally by accident I got into selling life insurance, which in my opinion was the best thing that ever happened to me in my life. Okay. अब मैं क्यों कहता हूँ इस वजह से, क्योंकि out of all selling a car, a home or clothes or something is very different. Selling life insurance is considered to be one of the toughest sales in the world. Reason क्या है? हाँ जी. देखिए, आप गाड़ी बेचते हो, कपड़ा बेचते हो, मकान बेचते हो, you can touch and feel and touch and feel and touch and feel. True. But selling life insurance, what is it? It's only a concept. There's nothing to touch and feel. आप खाली एक बात कह रहे हो कि अगर कुछ ऐसी चीज होती है तो आपके परिवार को या आपको ये मिलेगा. इन दैट्स इट. नाउ यू आर पुटिंग एंड लिविंग इन द फ्यूचर. दैट्स अबाउट इट. सो इस वजह से इट्स अ वेरी टफ सेल. एंड लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि these companies hire 100 people and within less than 1 year 90% people leave. Because They it's leave hard the for industry. sales. They can't survive. 90%. So attrition is very high. Right. तो that means मेरे को 10 presentations करनी होती थी या 15 करनी होती थी to make one sale. अगर मान लीजिए 10 presentation करता हूँ, means 9 people rejected me. 9 लोगों ने मुझे कह दिया कि साहब मैं नहीं लेना चाहता आपसे. 9 rejections to make one sale. और तकरीबन होता क्या है कि most people take rejections personally True. and they get demotivated बिल्कुल. and they quit. And that is what taught me how to lose and how to fail, how to accept rejection. आज दुख की बात यह है कि तकरीबन स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इवन पेरेंट्स अपने बच्चों को 2 ही चीज सिखाते हैं कि हाउ टू सक्सीड एंड हाउ टू विन. हाउ टू सक्सीड एंड हाउ टू विन, यही सिखाते हैं बच्चों को. सक्सीड एंड विन, 2 words. बट जिंदगी हमेशा ऊपर नहीं जाती है, Right. नीचे नीचे भी आती है. बिल्कुल. बट माँ बाप ने या टीचर्स, स्कूल ने, किसी ने नहीं सिखाया उनको. और जब फेलियर आती है, which is reality, they don't know how to handle it. They go into deep depressions, they commit suicide. There are so major problems, so many things. And that is the big thing. तो सबसे बड़ी चीज ये है. और लाइफ इंश्योरेंस भी जब मैं बेचने लगा, within 3 months my manager called me to fire me for non-performance. Within 3 months. तो मैंने अपने मैनेजर को बोला कि भैया मेरे को थोड़ा सा मौका दो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी एकेडमिक्स क्या है, आई एम अ BCom 3rd division failed in my 10th, दैट्स माई एकेडमिक्स. तो मैं क्या ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो आई हैव अ हैंडीकैप, हाउ डू एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ मी. तो उस दिन मेरे मैनेजर ने मेरे से बहुत कड़क के बात की. एंड ही सेड टू मी, यू शट अप एंड लिसन टू मी, यू शट अप एंड लिसन टू मी. मेरे को कहता है कि यू डोंट हैव अ हैंडीकैप, यू हैव अ बैड एटीट्यूड. तुम्हारा नजरिया खराब है, यू हैव बैड एटीट्यूड. और मेरे को कहता है कि तुम जैसे लोग सिर्फ अपनी जिंदगियां ही नहीं बर्बाद करते, बल्कि अपने परिवार की जिंदगियां भी बर्बाद करते हो. तो मेरे को कहता है, जानते हो हु हैज अ हैंडीकैप? कहता है जो पढ़े लिखे होते हैं ना, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, दे हैव हैंडीकैप्स. तो मैंने कहा ये तो सुना नहीं मैंने कभी, उनको हैंडीकैप How? कैसे होता है? कहता है कि दुनिया में कहीं पर भी जाकर देख लो, they all have chosen their field, they are stuck. उन लोगों ने अपना क्षेत्र चुन लिया है, वो फंसे पड़े हैं वहां पर. This is generally true. True. They narrow it Exceptions, down. yeah, and exceptions are different. तो मेरे को कहता है तुमने अपना फील्ड चुना ही नहीं है. देखो, the world is open to you. The world is open to you. तो मैंने कहा भैया मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं. तो मेरे को कहता है now that you're fired,
You have all the time to think. He said, leave my office. तो मैं उनके दफ्तर से निकला। मैं 45 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो उस शाम को वहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा था, डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील, जिन्होंने किताब लिखी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ओके। तो मैं उनके प्रोग्राम में चला गया। आई पेड $39 which I didn't have। डॉक्टर पील आए, वहाँ पर 1000 लोग बैठे थे, मैं भी बैठा था। तो नज़र घुमा के देखा तो बोले कि लगता है आप लोग सब शांत बैठे हो, किसी को कोई समस्या नहीं है। तो पूछते हैं किसी को कोई समस्या है क्या? तो किसको नहीं है? तो हर एक को समस्या होती है। तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर पील ने बोला कि कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो फिर सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर पील बोले कि जब मैं यहाँ पे आ रहा था 200 गज दूर मैंने एक जगह देखी, वहाँ पे कुछ लोग एकदम रिलैक्स्ड पड़े थे, वहाँ पर उनको कोई समस्या नहीं थी। कितने लोग जानना चाहते कौन सी जगह है? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर पील बोले 200 गज दूर यहाँ से एक शमशान घाट है। ओह माय गॉड। और वहाँ पे लोग एकदम लेटे पड़े हैं, रिलैक्स्ड, उनको कोई समस्या ही नहीं है। तब उन्होंने पूछा कि कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? Nobody. तो कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ, सबने हाथ जेब में डाल लिया। तो डॉक्टर पील ने बोला उस दिन कि याद रखिए, समस्या एक जीवन का प्रतीक है। भैया, जब तक जिंदा रहोगे समस्या रहेगी। बिल्कुल। जब समस्या ही नहीं रहेगी, आप ही नहीं रहोगे। और जब समस्या कम होने लगे तो घंटी बजने वाली है लग तो डॉक्टर पील ने उस दिन एक प्रार्थना दी जो मेरे हिसाब से जिंदगी का एक निचोड़ है। ओके। आई डोंट लीव माई होम विदाउट द प्रेयर। एंड बहुत सी मुझे मुश्किलातें भी आई, एंड दिस प्रेयर हैज हेल्प मी टू ओवरकम देम। प्रेयर ऐसे जाती है, पहले मैं एक इंग्लिश में बोलूंगा, देन आई विल डू इट इन हिंदी। श्योर। It is called the serenity prayer, Okay. which says, God grant me the serenity to accept the things that I cannot change, and courage to change the things that I can, and wisdom to know the difference what I can and what I Can't. cannot. Very beautiful. परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि बदल दो, बिल्कुल। और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं, क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप इस प्रार्थना को एनालाइज कीजिए, जस्ट बाइफरकेट इट, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं। अब सवाल यह है, जिंदगी में क्या हर चीज हम बदल सकते हैं? क्या हर चीज को हम तोड़ मोड़ के घुमा फिरा के कैन वी मेक इट टू आवर कन्वीनियंस? आंसर इज नो। बहुत सी चीजें हमारे हाथ से बाहर होती हैं, जैसे कि मैंने अपने माँ बाप को नहीं चुना, ना ही आपने चुना। मैं कहाँ पैदा हुआ मेरा फैसला नहीं था। मेरा कद क्या है, जिस्म का रंग क्या है, ये मेरा फैसला नहीं है। और कई लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ बुरे हादसे भी पैदा हो जाते हैं। कई लोग अपाहिज पैदा हो जाते हैं। व्हाट रॉन्ग डिड दे डू? वी डोंट नो। एग्जैक्टली। तो कहते हैं कि जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करो, क्योंकि बहुत बारी हम उन चीजों के साथ लड़ते रहते हैं जो हम बदल ही नहीं सकते, और अपनी जिंदगी में तनाव लेके चले आते हैं। वी बिकम पैरालाइज्ड, वी बिकम अनप्रोडक्टिव। राइट। तो जो मैं बदल नहीं सकता, लेट मी एक्सेप्ट इट ग्रेशियसली, नॉट ग्रजिंगली। और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि बदल दो, और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं, क्या बदल सकता हूं और क्या मैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रेयर। नहीं बदल सकता। अब जब मैंने अपनी किताब लिखी यू कैन अचीव मोर, और फिर ये लिखी लिव व्हाइल यू आर अलाइव, जो कि अभी 2-3 महीने पहले लॉन्च हुई है, राइट। तो इसी सोच को लेके मैं 2 कदम आगे बढ़ गया। तो मैंने उसमें लिखा है कि जिंदगी एक फैसला भी है और जिंदगी एक समझौता भी है। लगता है इन दोनों बातों में टकराव है, लेकिन है नहीं। ना, जिंदगी एक फैसला कैसे है? आप देखिए,
मैं अगर आपके साथ दुर्व्यवहार करता हूं तो मैंने फैसला किया आप मुझसे मेरे साथ दुर्व्यवहार कीजिए। मैं अगर आपके साथ बदतमीजी के साथ पेश आता हूं तो मैंने फैसला किया आप मेरे साथ बदतमीजी के साथ पेश आइए। मैं अगर सिगरेट जलाता हूं तो मैंने फैसला किया कैंसर को बुलाने के लिए। मैं अगर दारू पी के गाड़ी चलाता हूं तो मैंने फैसला किया एक्सीडेंट को बुलाने के लिए। मैं अगर रोज एक्सरसाइज करता हूं तो मैंने फैसला किया अच्छी सेहत को बुलाने के लिए। ट्रू, ठीक। बिल्कुल। और मैं अगर झूठ बोलता हूं, इफ आई टेल लाइज, आई हैव chosen to lose my credibility, haven't I? Right. मैंने फैसला किया अपनी विश्वसनीयता को खोने के लिए अगर झूठ बोलता हूं तो। See, life is full of choices. It is. Now, the next sentence is very important. We are all free to the point of choice. But after we make our choices, the choice controls the chooser. We have no more choice. हम सब एक फैसला लेने तक आज़ाद हैं, लेकिन जब हम फैसला ले चुकते हैं हमारी आज़ादी खत्म हो जाती है। अब फैसला हम पे काबू पा लेता है। So please explain. सी, हम अगर फैसला ले लेते हैं उसके बाद हमारी आज़ादी खत्म हो जाती है। फैसला ले चुके, नाउ द कॉन्सिक्वेंस कम इन। वॉट एवर डिसीजन वी हैव मेड, अब तो उसी के साथ जीना है हमारे को। Right. और जिंदगी एक समझौता कैसे है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ताश के पत्ते कैसे मिलते हैं इसका फैसला हम नहीं कर सकते, खेल कैसे खेलते हैं इसका फैसला हम जरूर कर सकते हैं। हाउ वी प्ले द गेम। Right. ओके, Again, what we can and what we can't control. राइट। तो अक्सर मेरे साथ स्पेशली प्रेस वाले पूछते हैं कि सर ये बताइए कि जो लोग सफल होते हैं क्या गलतियां नहीं करते, और जो लोग असफल होते हैं क्या अच्छे काम नहीं करते। इसका जवाब है कि जो लोग सफल होते हैं वो गलतियां जरूर करते हैं। बट याद रखिए, कभी कभार गलती करने से कोई इंसान असफल नहीं हुआ, अपनी गलती को दोहराते रहने के बाद ही फेल हुआ है। बिल्कुल। और सिमिलरली आप अच्छे काम कभी कभार करने से कोई सफल नहीं होता, अपने अच्छे काम को दोहराते रहने के बाद ही इंसान सफल होता है। सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट। तो इसके बाद हमने लिखा है कि लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस एंड लाइफ इज फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। And important thing is, series of positive choices in life is called success, and series of negative choices in life is called Failure. And that's very simple. That's So- a very beautiful way to put it, because लोग बहुत complicate कर देते हैं इन चीज़ों को, और फिर at the end of the day, you know, we start blaming luck, we start blaming a lot of other factors. We don't understand the basics that you've just cleared. That's right. That's right. And important thing is, क्योंकि आपने किस्मत की बात की, लक की बात करी, तो दिस हैज बिकम अ बिग इशू। एक सबसे बड़ा जो नुकसान हमारे को हिंदुस्तान में हम लोग को पहुंचाया है, हैज बीन डन बाय आवर मीडिया। मैं किस वजह से कह रहा हूं ये, क्योंकि आप कोई भी टेलीविजन चैनल देखिए और इवन प्रिंट मीडिया फॉर दैट मैटर देखिए, पहली चीज टीवी चैनल खोलेंगे क्या दिखेंगे, वहां पर एक बाबा जी बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हैं, हाँ हॉरोस्कोप लेके बैठे हैं। Starts at 6 in the morning. हाँ, और नहीं लेट नाइट तक चलता रहता है यही से हॉरोस्कोप। Right. और वो गुरु जी आपसे पूछ रहे हैं नाम बताओ, जन्म तिथि बताओ, कहाँ से बोल रहे हो बताओ, कहाँ जन्म हुआ वो बताओ, और जन्म टाइम बताओ। तो आप बहुत बारी लोग कहते हैं मुझे मालूम नहीं, तो गुरु जी वहाँ पर बैठे हैं एक लैपटॉप लगा के, तो लैपटॉप लगा के टिक 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 कर लगा के बोलेंगे। तो अब इमीडिएटली उनको सब निकल गया वहाँ पर, तो फिर बोलते हैं बेटा दूसरा तीसरे के घर में बैठा है, तीसरा चौथे के घर में बैठा है, चौथा पांचवें के घर में बैठा है, अब तो समस्या होगी। अरे भैया दूसरा तीसरे के घर में बैठेगा तो समस्या तो होगी। अब फिर बोलते हैं मंगलिक हो गया फिर, और फिर शनि चढ़ गया। अब वो डर रहा है, डर गया सब। अब क्या बोले, शनि को उतारने का उपाय क्या है? तो उतारने का उपाय ये है कि एक काला रुमाल लो, उसमें काली दाल डालो, काला काजल लगाओ, फिर काला कुत्ता खोजो, फिर काला बर्तन खोजो, उसमें दूध पिलाओ। वो काला ये खोजते रहे, काले खोरे खोजते रहते हैं। अब मेरा सवाल ये है
कि मुझे आप एक बात बताओ, शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो भेजो शनि को पाकिस्तान सारे टेररिस्ट को मरवा दो। अगर शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है तो भेजो शनि को लद्दाख चाइना से लड़वा दो। और मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि शनि परमानेंट इंडिया में क्यों रहता है? कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं जाता, न्यूजीलैंड नहीं जाता, अमेरिका नहीं, बैठा यहीं पे बैठा है शनि। ट्रू, थिंक अबाउट इट। राइट। मैं ये किस वजह से बात कह रहा हूं कि अगर आप स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ें, स्वामी दयानंद की जीवनी पढ़ें, गुरु नानक की जीवनी पढ़ें, दे नेवर बिलीव्ड इन ऑल दीज थिंग्स। Right. और नॉट ओनली दैट, बल्कि दे फॉट अगेंस्ट इट। ट्रू। आप देखो, सिख परिवारों में कोई मंगलिक नहीं होता, सिख परिवारों में कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकालते शादी का, बिल्कुल। कोई पत्रियां नहीं मिलाते। हाउ कम? दे फॉट अगेंस्ट इट। हर सिख परिवार में शादी संडे को होती है, संडे को सूट नहीं करता सैटरडे को कर देते हैं, सैटरडे को सूट नहीं करता फ्राइडे को कर देते हैं। यू नो समथिंग, ये सुपरस्टिशन, अंधविश्वास जो आ गया हम लोग के अंदर, ये हमारे को गिराता है, बिल्कुल। कमजोर बनाता है। इट क्रिएट्स फियर। फियर। एंड नॉट ओनली दैट, मैंने एक आदमी को देखा, उसने नग पहनते हैं आजकल, अंगूठियां पहनाते हैं आपको, नक्षत्र। तो मैंने एक आदमी को देखा, उसके पास 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां पहनी थी, और कोई उंगली में 2-2 भी थी। तो मैंने उसको पूछा 10 नीचे भी पहनी है क्या? व्हाट इज दिस? एंड इंटरेस्टिंगली, हम लोग कितना अंधविश्वास में बिलीव करते हैं। लुक, मैं एक बारी एयरपोर्ट जा रहा था, तो अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाई, गाड़ी रुक गई। तो मैंने उसको पूछा कि भैया क्या हो गया? बोले साहब बिल्ली रास्ता काट गई। तो मैंने कहा अब क्या होगा? कहता साहब अब रोक देता हूँ गाड़ी, अगर जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा फ्लाइट में जाएगा तो नुकसान तो हो ही जाएगा मेरा। तो मैंने उसको पूछा कि भैया कब तक गाड़ी रोकोगे? कहता जब तक कोई दूसरी गाड़ी ना निकल जाए। तो मैंने कहा उसका नुकसान हो जाएगा। बोले उसकी, दैट इज हिज प्रॉब्लम। यू सी, एज इफ ही हैड ऑल द आंसर्स, उसको सब जवाब मालूम थे। तो मैंने उसको एक बात पूछी कि मैंने कहा भैया एक बात बताओ, मान लीजिए आप 15 गज पहले होते और बिल्ली अगर निकल चुकी होती और आपने अगर बिल्ली को ना देखा होता, इन दैट केस आप ही की गाड़ी पहली होती, फिर क्या होता? जवाब सुनो साहब उसका। कहता है साहब उस हालत में बिल्ली की पावर कम हो जाती है, बिल्ली की पावर कम हो जाती है। और आप हंस रहे हो, जानते हो पढ़े लिखे PhD MBA यही कुछ कर रहे हैं। This is exactly what they are doing. That's weird. That is sad but weird. मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। There's an article that came out in India today, January 2018 issue, which said astrology and superstition. और उसमें खास तौर पे लिखा हुआ था कि because of superstition, इंडिया में natural child birth has gone down by 80% in many places, 80%. And they especially quoted South India, Bangalore, Hyderabad, Madras. Natural childbirth has gone down by 80%, 80. That's a lot. What is it? Why? You know what? Because they went to some astrologer and the astrologer said, this is the time to pull out the kid. So they did surgery and pulled out the kid. Because some Jyotishi astrology said that. This is what we have become now. Look at this. And दुख की बात यह है कि बहुत से लोग जो आज मंदिरों में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, they go there to those places more out of fear than out of faith. True. क्योंकि किसी ने बोल दिया ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा. This is what it is. You know something? Spirituality should make a person strong, not Exactly. weak. Exactly. And this is weakening the people here. Right. You're constantly carrying the negative energy in your mind and around That's right. yourself. That's right. देखिए जिंदगी हमेशा ऊपर नहीं जाती है, नीचे भी आती है. बिल्कुल गुरबानी कहती है सर, नानक दुखिया सब संसार. There's संसार. nobody without problems. That's right. But interestingly, जिसने जिंदगी में कहीं जाना है, जब
जिंदगी में समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, दे आस्क ए क्वेश्चन, दे एनालाइज एंड दे आस्क, अगर यही समस्या मेरे को दोबारा आ जाए तो क्या मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जो मैंने किया था? इफ द आंसर इज यस, मीन्स यू हैव नॉट लर्नड एनीथिंग। Right. Yeah? But then they analyze and they say, what would I do differently? अगर यही समस्या दोबारा से आती है, they learn from it, they don't repeat their mistakes. Right. But जिसने जिंदगी में कहीं जाना नहीं है, वो क्या कहता है जब समस्या आती है, जानते हो? वो कहता है, नक्षत्र मेरा साथ नहीं दे रहे, my stars are not favoring me. वो कभी सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं, एनालाइज नहीं करेगा, और वही गलती को दोहराते चले जाएगा और फिर कहेगा मेरी किस्मत खराब है। Sadly, this is what is. People have become fatalistic. भाग्य में लिखा है समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ मिल नहीं सकता। ऐसे लोग भाग्यवादी हो जाते हैं। भाग्यवादी लोग कुछ करके नहीं जाते, कुछ होने का इंतजार करते हैं। और आप देखो बहुत से अखबारों में छोटे छोटे इतने इतने पैम्फलेट फ्लायर निकल रहे हैं, स्वामी जी, गुरु जी, फलाना ये आ गया, आपको शादी नहीं हो रही है, पड़ोसी के साथ समस्या हो रही है, पास नहीं हो रहे, बाहर जाना है, इंडिया से बाहर जाना है, कोर्ट कचहरी में केस लगा हुआ है, 151 रुपये दी भेजो और 24 घंटे में रिजल्ट लो। Right. That's into tech also now. Gone are the days of print media. That's into tech also now. Right. Get your results in 24 hours. What a joke. What a joke. True. And not only that, but there are many so-called motivational speakers have also come up. वो आपको करते हैं अपना टेलीविजन पे, यूट्यूब पे मैंने देखा है, वो आपको बोलेंगे कि यू वांट टू लूज 25 पाउंड्स ऑफ वेट इन 30 डेज विदाउट डाइटिंग, विदाउट एक्सरसाइजिंग, गिव मी $99 और 99 रुपीज भेजो, 99, आपका 25 किलो वजन नीचे निकल जाएगा। व्हाट इज इट? Nobody is focusing on the karma that you actually have to put in, be it in any aspect. या आप ये नहीं, ये यहाँ तक कहते हैं कि easy to lose weight 25 pounds or 25 kilos in 30 days without exercise, without dieting. अब कहता है सब बगैर एक्सरसाइज, बगैर डाइटिंग के मेरा वेट लूज हो गया, 99 रुपीज़ दे दो, काम खत्म हो गया। इसी तरीके से और भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो 10 दिन में MBA डिग्री बेच रहा है, एक आदमी बेच रहा है, MBA की डिग्री बेच रहा है यहाँ पर, हो उसके ऊपर कई केस हो गए। ऐसे लोग भी झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं। So there are so many frauds right there going on. But I guess this has become the culture, sadly. Same thing you find in politics, same thing you find in legal profession, same thing you find in the medical profession, sadly. बल्कि अगर आप आज यहाँ से ना एक ही चीज ले जाओ आप, जरूरी चीज ये है, क्योंकि I was addressing about 1,000 doctors a while ago. Okay. It was a alumni meet. तो मेरे पहले एक बहुत बड़े नीति आयोग के ऑफिसर एड्रेस कर रहे थे, तो बोले बहुत कन्विक्शन के साथ बोल रहे थे कि हमारी GDP इतनी बढ़ रही है, फलाना बढ़ रहा है, हमने इतने लाख करोड़ रुपया स्किल डेवलपमेंट में लगा दिया, सो देन इट वॉज माई टर्न टू एड्रेस। तो मेरे को उन्होंने बुलाया, तो मैंने एक्नॉलेज किया उनको सर्टनली कि साहब GDP बढ़ना अच्छी चीज़ है और बढ़नी भी चाहिए, और दूसरा स्किल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। लेकिन मैंने एक बात कही कि मैंने कहा साहब आप एडवाइजरी में हो, आप एडवाइस करते हो प्रधानमंत्री को, नीति आयोग इज़ अ वेरी बिग इंस्टीट्यूशन, तो मैंने कहा साहब एक संदेश आज जरूर ले जाओ आप प्रधानमंत्री जी को, वो ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या देश इज नॉट बिल्ट ऑन स्किल्स, इट इज बिल्ट ऑन कैरेक्टर। ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने एक उदाहरण दिया कि इफ यू हैव अ स्किलफुल डॉक्टर हु लैक्स कैरेक्टर, दे विल डू यूजलेस सर्जरीज, यूजलेस प्रोसीजर्स। टू देम a sick person is not a patient but a target. Right. To a skillful lawyer who lacks character, a matter that can be resolved in 5 hearings will take 500 hearings. To a skillful judge who lacks character, will give judgments no justice. Right. To a skillful civil servant who lacks character, will himself become a mafia. To skillful
politician who lacks character will sell his mother for money. तो वहां पे बैठे थे तो मैंने कहा भैया एक बात बताओ, रावण तो बहुत ज्ञानी था, he was very knowledgeable, but he lacked what? Character. He lacked character. तो मैंने कहा साहब अपनी जितनी पढ़ाई कर रहे हो ना, कंप्यूटर, अंग्रेजी, अलजेब्रा सब पढ़ा रहे हो, जो चरित्र निर्माण है वो नहीं हो रहा है, तो आप खाली रावण पैदा कर रहे हो स्कूलों में और कुछ नहीं कर रहे।